Hello everyone. Welcome to the Pack Info channel. Before we get started, make sure to like and share this video, smash the subscribe button and click the notification bell. इसको प्लान ही नहीं करेंगे, हम अपनी एक कुछ स्ट्रैटेजी ही नहीं बनाएंगे, इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी, और फिर उन वर्टिकल्स की स्ट्रैटेजी ही नहीं बनाएंगे, तो हम कैसे? फिर तो वही होगा जिसका जिधर चाहेगा उधर मुंह मोड़ के चल पड़ेगा, और हम एक सिमत में अपनी इकोनॉमी को नहीं लेके जा सकते। इसलिए आप देखते हैं हम जनरेशन बढ़ा देते हैं तो ट्रांसमिशन हमें पता नहीं होता कि वो ट्रांसमिशन लेगी या नहीं। हम आज को मुसीबत पड़ी होती है, बिजली की प्रोडक्शन तो 30,000 मेगावाट से ज्यादा है और ट्रांसमिशन 24,000 पे रुक जाती है, क्योंकि लेफ्ट हैंड इज नॉट टॉकिंग विद द राइट हैंड। इस किस्म के और भी बड़े इश्यूज हैं जो कि इस प्रोसेस से रिजॉल्व हो जाएंगे। मेरे ख्याल में आपको मालूम ही होगा कि इस वक्त जो हमारी जो इकोनॉमी है वो एक तो सेंटिमेंट पॉजिटिव होना शुरू हो गया। ओवरसीज चैम्बर ने जो दिया है 59%, एक किस्म पॉजिटिविटी आई है ओवरऑल, और 108% आई है ओवरसीज इन्वेस्टर्स की। फिर आपने अभी देखा होगा कि टेक्सटाइल्स की एक्सपोर्ट्स भी कुछ 16-17% बढ़ी हैं, और जहां जो मोबाइल बन रहे हैं वो जो इंपोर्ट होते हैं उससे ज्यादा होना शुरू हो गए। तो ये एक किस्म से सेंटिमेंट है कि बेसिकली वी आर ऑन द राइट ट्रैक। सो मैं इसको आज की जो हमारी ये जो मीटिंग है इसको मैं इसका आगाज करूंगा कि एक हमने कुछ 4 मिनट की आपके लिए बनाई है जो कि कैप्चर करती है इस चीज को कि हमने क्या किया। चलें जनाब, और लाइटें बंद करें।
میں چاہوں گا کہ اب ہمارے جو وہ لوگ جنہوں نے ان پہ کام کیا ہے اور سارے 13 لوگ کو نہیں پریزنٹ کر سکتے آج، لیکن سب سے پہلے ڈاکٹر اشرت صاحب کو کہوں گا کہ چند منٹ لیں، اور کیونکہ ہم نے یہ کہا کہ یہ ہماری اکانومی جو ہے یہ سسٹینیبلٹی اس میں کیوں نہیں ہے، کیا وجہ ہے کہ ہم 4-5 سال گرو کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم گر جاتے ہیں، تو اس کی وجوہات اور اس کی جو بھائی آگے ہم نے اس کا کیا کرنا ہے، تو ڈاکٹر اشرت صاحب نے اور اکانومسٹ وغیرہ سے مل کے کام کیا. میں چاہوں گا آئی ریکویسٹ ڈاکٹر صاحب. اگر کیمرے کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو اگر آپ کرتے ہیں بڑی مہربانی. تو ہمارا جو فیوچر کا روڈ میپ ہے اس میں ہم سیکھیں کہ کیا غلطیاں ہوئی ہیں اور ایک کو کیسے درست کیا جاتا ہے. تو گروتھ تو ہر قسم کی ہو سکتی ہے، اور جو ہوتی ہے گروتھ وہ ایلیٹسٹ گروتھ بھی ہو سکتی ہے جس کے سارے جو سمر ہیں وہ کچھ لوگوں کے ہاتھ میں ہوں، اور ایک شیئرڈ گروتھ ہوتی ہے جس میں کہ ڈسٹریبیوشن گروتھ کے بینیفٹس کا وہ سب کو سارے پورے عوام کو مل سکے. تو ہمارا تھا انکلوسیو گروتھ جس میں کہ میجورٹی آف دا پاپولیشن کو فائدہ ہو اس کے ہونے سے، اور دوسرا سسٹین گروتھ، یہ نہیں کہ ہم اوپر گئے پھر اس کے بعد نیچے آ گئے، پھر اوپر گئے پھر نیچے آ گئے. اور سسٹین گروتھ کی سب سے جو اس وقت وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی ہماری انکمز بڑھتی ہیں تو ہماری ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے گڈس کی، سروسز کی، اور کیونکہ ہماری پروڈکشن کیپیسٹی ملک کی اس کا پورا نہیں کر سکتی ہے تو ہمیں باہر سے امپورٹس پہ انحصار کرنا پڑتا ہے. جب آپ امپورٹس پہ انحصار کرتے ہیں تو آپ کا بیلنس آف پیمنٹ جو ہے وہ بالکل تتر بتر ہو جاتا ہے. پھر آپ بوروئنگ کرتے ہیں یا IMF کے پاس جاتے ہیں، ان کی شرطیں ہوتی ہیں اور یہ قرضے جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں. تو تھوڑی دن گروتھ ہوئی، اس کے بعد پھر ہم واپس اسی پہ آ گئے. تو ہمارا پورا ایم یہ تھا کہ کیسے ہم اس کو سسٹین گروتھ اور انکلوسیو گروتھ پہ لے کے آئیں. تو اس کے شارٹ ٹرم، میڈیم ٹرم اور لانگ ٹرم کچھ ہم نے فیصلے جو ہیں کچھ شروع ہو چکے ہیں، کچھ ہو رہے ہیں، اور یہ کمپارٹمنٹ نہیں ہے بلکہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ منحصر ہیں. سب سے پہلا یہ ہے کہ اگر آپ نے عام شہری کے لیے کوئی فائدہ پہنچانا ہے، اس کی ضروریات جو ہیں تعلیم، صحت، پینے کا پانی، سوریج، پبلک ٹرانسپورٹ، تو لوکل گورنمنٹس کو آپ نے مضبوط کرنا ہے، ان کو لیگل پاورز دینی ہے اور ریسورسز دینا ہے. یہ ڈیولوشن جو ہے 18 امینڈمنٹ کے بعد اور NFC 7 کے بعد یہ کمپلیٹ نہیں ہوا ہے. اس کو کمپلیٹ کرنا ہے کہ لوکل گورنمنٹس کو مضبوط کرنا ہے. دوسرا ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے کہ ہمارا انویسٹمنٹ GDP ریشو جو ہے وہ 15-16% پہ ہوتا ہے. بنگلہ دیش جو ہے وہ بھی 15-16 پہ تھا، لیکن آج وہ 30 کے قریب پہنچ گیا. ہندوستان تو پہلے ہی پہنچ گیا تھا. ہمیں کم از کم نہیں تو یہ شارٹ ٹرم میں اس کو 20% لانا ہے. تیسرا یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے پروگریسو فارمر جو ہے وہ 40-50 من گندم کرتا ہے اور ایوریج ہماری ییلڈ جو آ رہی ہے وہ 29 من 30 من آ رہی ہے. تو جب تک کہ ہم اس کو پروڈکٹیوٹی جو ہے عام کسان کی، اسمال فارمر کی، وہ نہیں بڑھائیں گے، اس وقت تک یہ ہم جا کے امپورٹ ہی کرتے رہیں گے ویٹ پر. پھر IT کا ایک ایسا سیکٹر ہے جس میں کافی ترقی ہوئی ہے اور یہ ہمارے ینگ جنریشن کے لیے بہت مضبوط ایک ستون ہے اور دنیا میں اس کی ڈیمانڈ ہے. ہندوستان اس وقت 150 بلین کی ایکسپورٹ کر رہا ہے.
हम मुश्किल से अभी 2 बिलियन पे पहुंचे, हमारे भी बड़े लिखे बच्चे हैं, उनको हम करें। फिर दूसरा है कि बिजनेस की यहाँ पर पाकिस्तान में कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत ज्यादा है। अब ये सारे जितने आप देखेंगे हमारे बड़े बिजनेसमैन हैं, ये इस्लामाबाद के चक्कर और कराची के चक्कर और लाहौर के सेक्रेटरीट के चक्कर लगाते हैं। वी हैव टू गेट द गवर्नमेंट आउट ऑफ देयर वे कि वो अपना काम जो है वो आसानी से कर सकें। FBR का टैक्स नेट बढ़ाना है हमने, ये 11%, 10% के करीब कोई मुल्क जो है वो अपने अखराजात पूरे नहीं कर सकता, और अखराजात हमारे जो हैं वो 20% हैं और हमारा रेवेन्यू जो है वो 11-12% है, इसको बढ़ाना है। फिर हमारी SOEs जो हैं, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस, जो लॉसेस में जा रही हैं, इनको रिवैम्प करना है और इसके प्लान्स बन चुके हैं, अब इस पे इम्प्लीमेंटेशन होना है। एक्सपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई करना है। आज ही शौकत तरीन साहब ने और रज़ाक दाऊद साहब ने मीटिंग की है कि हम नए एक्सपोर्टर्स को, सारा वक्त हम टेक्सटाइल और दूसरे को करते रहते हैं, नए एक्सपोर्टर्स जो आ रहे हैं, नए प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं, उनको भी हम किस तरह से इंसेंटिव दें ताकि वो आगे जा सकें। और जो ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट्स हैं उसमें हम वैल्यू एडिशन करें, ये नहीं कि सारा वक्त हम यार्न और कॉटन क्लॉथ ही बेचते रहें। हमें चाहिए कि हम जो हैं वो गारमेंट्स पे और जो नीटेड है उसकी तरफ जाएं, टेक्निकल टेक्सटाइल की तरफ जाएं। रेमिटेंसेस को बढ़ाएं क्योंकि उसने हमें बड़ी मदद की है, और उनके जो मसाइल हैं उनको हल करें। डेट का आपको पता है कि सर्कुलर डेट का मैनेजमेंट है और ये हमने पूरा करना है, और टेक्निकल वोकेशनल ट्रेनिंग पे करना है। ये जितने भी हमने ग्रोथ के स्ट्रैटेजी बनाई है उसके पीछे, जैसे अभी शौकत तरीन साहब ने भी बताया और आपने देखे, हर एक के पीछे एक पूरी स्ट्रैटेजी है। ये खाली विश लिस्ट नहीं है बल्कि इसके पीछे पूरा काम हुआ है, हर ग्रुप ने अपना काम किया है। इस ग्रुप के कामों की वजह से ये हमने इसमें रिकमेंडेशंस की हैं। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि आपने दूसरे ग्रुप्स को भी सुनना है, तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया है। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत मेहरबानी। मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा खुसरो साहब से और मोहम्मद अली तब्बा साहब से कि इंडस्ट्री के बारे में कुछ अगर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ने कहा कि पाकिस्तान का चैलेंज रहता है कि सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट आ जाता है, प्रोडक्शन कैचअप नहीं करती डिमांड से, और कोविड की वजह से ग्लोबल इकोनॉमी में जो इम्पैक्ट आया वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और प्रोडक्शन पे आया और पाकिस्तान में भी आया। तो हमारी हुकूमत का सबसे पहला तरजीह क्या थी? जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है पाकिस्तान के अंदर उसको हम पूरी यूटिलाइजेशन की तरफ लेके जाएं। तो शॉर्ट टर्म में हमने इंस्टॉल्ड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को बढ़ाने की कोशिश की, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि आज ऑटो प्रोडक्शन बढ़ गई, सीमेंट बढ़ गया, स्टील की प्रोडक्शन बढ़ रही है, और मोबाइल डिवाइसेस का इन्होंने कहा कि पहली दफ़ा डोमेस्टिक प्रोडक्शन इंपोर्ट से बढ़ गई। अब जब ये लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो हमने इस तरीके से अप्रोच किया, इस साल उसकी जो साल ख़त्म हुआ उसका एक्चुअल ग्रोथ फिगर अगर आप स्लॉटरिंग हाउस वगैरह को निकालते हैं तो 15% 10 साल के बाद आपका LSM सेक्टर इस पे आया है, जिसकी वजह से शहबाज राना और कियानी साहब बैठे हैं। इस दफ़ा का जो पिछले साल का फाइनेंशियल ईयर का जो GDP का फिगर है प्रोविजनल, वो मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ वो 4% नहीं, जब ये फिगर्स बीच में कैलकुलेट होंगे तो 4.5% पे आपकी GDP ग्रोथ आएगी। अब जब ये लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ता है तो इसके साथ टोटल सप्लाई चेन साथ आती है। तो फोकस अब हमारा दरमियाना और मीडियम टर्म एंटरप्राइजेस की तरफ गया है। उसके लिए टैक्स के लिए हमने इसी बजट में अंडर द लीडरशिप ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर बहुत सारे इंसेंटिव्स दिए हैं, और साथ क्रेडिट के लिए काम हो रहा है कोलैटरल फ्री, और उनको SMEs को क्रेडिट कैसे बढ़ा, और SMEs के अंदर भी जो डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्री है, ऑटो पार्ट्स जहाँ बन रहे हैं, इंजीनियरिंग गुड्स जहाँ बन रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग बेस को तकरीबन 20 लाख आपकी इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड SMEs हैं। और तीसरी चीज़ कि इनको जो दुश्वारियाँ हैं रेगुलेशन में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की, वो काम जारी है। आधा तकरीबन
हमने दुश्वारियाँ ख़त्म कर दी और आगे इंशाल्लाह और ख़त्म करेंगे। तो अभी रज़ाक साहब आपको बताएंगे कि इसके अलावा जैसे आप इस तरफ जाते हैं तो आप देखा आपने कि आपके रॉ मटेरियल्स भी आप इंपोर्ट कर रहे हैं। रज़ाक साहब ने रॉ मटेरियल्स पे भी बताएंगे कि ख़त्म कर दी, मगर बदकिस्मती से स्टील हमारा और अभी तक हम नहीं गए। तो लोग जो रॉ मटेरियल इंडिजिनाइजेशन पॉलिसी आनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा जो मुस्तकबिल इंडस्ट्रियल पॉलिसी का फोकस है, कोई दुनिया कोई मईशत तरक्की नहीं किया जब तक उसने अपनी मैन्युफैक्चरिंग और इंजीनियरिंग बेस को नहीं बढ़ाया। और उसके लिए फिर आपको रॉ मटेरियल्स चाहिए, स्टील चाहिए, कॉपर चाहिए, जिंक चाहिए, तो उसकी इंडिजिनाइजेशन की तरफ भी हम लेके आ रहे हैं। लास्टली इसी हुकूमत की यही सोच थी कि क्रेडिट को आसान किया जाए ताकि BMR कैपेसिटी एग्जिस्टिंग हो गई, उसके बाद एडिशनल कैपेसिटी है। वो रज़ाक साहब आपको बताएंगे, टेक्सटाइल एक बड़ी एग्जाम्पल है। और लास्टली हमारे मुल्क का जो इकोनॉमिक इंजन है वो कराची है। इसी बजट में 7 अरब से टैक्स पेयर में मनी से 1500 एकड़ का हमने इंडस्ट्रियल पार्क कराची स्टील मिल की जमीन, और हम वो इंडस्ट्रीज लेके आएंगे जो हमारी एक्सपोर्ट में एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे और या इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करें। और लास्टली मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, असेंबली, ऑटो मैन्युफैक्चरिंग, असेंबली, फोकस है लोकलाइजेशन के परसेंटेज जो पाकिस्तान में पुर्जे बने वैल्यू में भी और तादाद में भी वो बढ़े। तो अभी हम जो पॉलिसी भी आ रही है उसका सबसे बड़ा उसका जो मेन थ्रस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेड इन पाकिस्तान हो। इन अल्फाज के साथ मैं मोहम्मद अली तबा साहब से रिक्वेस्ट करूंगा जो को चेयर थे हमारी इंडस्ट्रीज कमेटी के वो इसमें कुछ अपने ऐड करें। जैसे आपने बता रहे थे कि पिछले अगर हम 10-15 साल की पाकिस्तान की हिस्ट्री देखें तो जो अप्स एंड डाउन्स है वो डॉक्टर शेख साहब ने भी आपको बहुत तरीके से बताया। तो पाकिस्तान का जो आगे रोड मैप है ना वो हमें एक्सपोर्ट बढ़ानी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी है। जो पाकिस्तान जो पिछले 15 सालों से डी इंडस्ट्रियलाइज हो रहा था, आई थिंक इस गवर्नमेंट के आने के बाद जो पॉलिसीज आई हैं, जैसे खुशबू साहब ने भी आपको बताया, उससे अब दोबारा से जो है ना मैन्युफैक्चरिंग में एक इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है और नए लोग आ रहे हैं इंडस्ट्री लगाने के लिए, और डिमांड जो है वो आगे जिस तरीके से बढ़ रही है, जिस तरह आपकी इनकम बढ़ेगी, जिस तरह आपकी GDP बढ़ेगी, जिस तरह डॉक्टर शरफ ने आपको बताया कि आपकी इनकम लेवल बढ़ेगी, लोगों की ज़रूरियात बढ़ेगी। और इस मरतबा जो गवर्नमेंट की पॉलिसी के उस ज़रूरियात को आप इम्पोर्ट के बजाय लोकल मैन्युफैक्चरिंग से पूरा करें ताकि आपकी एक सस्टेनेबल ग्रोथ भी हो। हम 4% ग्रोथ करते फिर दोबारा से नीचे आ जाते, पीछे जाते, फिर नीचे आ जाते। तो पाकिस्तान का एक वाहिद जरिया जो है वो हमें एक्सपोर्ट को किसी तरीके से अगले 3 से 4 सालों में आई एम श्योर रज़ाक दाऊद साहब की पॉलिसीज़ भी बहुत ही एक्सपोर्ट फ्रेंडली पॉलिसीज़ है, और ये 2-3 साल में अगर हम ये $40-50 बिलियन का हदफ कर लेते एक्सपोर्ट में तो पाकिस्तान में एक सस्टेनेबिलिटी आ जाएगी। और हमें फ्यूचर में 6 से 7 से 8% ग्रोथ को कंटिन्यू करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट, एग्रीकल्चर और जितनी भी जो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशंस है उसको हमें तवज्जो देनी होगी। बिकॉज पाकिस्तान में एक लोगों ने एक कल्चर क्रिएट कर दिया है कि एक ट्रेडिंग इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया पिछले 15-20 सालों में, बिकॉज उसमें स्मगलिंग, अंडर इन्वॉइसिंग, उस पर कोई कंट्रोल और चेक बैलेंस नहीं था। तो जो SMEs थी ना वो बंद हो गई। अब दोबारा से इसको हमें रिवाइव करने की ज़रूरत है। जो गवर्नमेंट की और स्टेट बैंक की जो पॉलिसी थी जिसमें उन्होंने टर्म फाइनेंसिंग दी 10 साल के लिए, कंसेशनल फाइनेंसिंग, आई थिंक ये वो एक डायरेक्शन और डिसीजन है जिससे लगता है कि अब गवर्नमेंट वाकई सीरियस है कि भाई मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में होनी चाहिए। 220 मिलियन की पॉपुलेशन के साथ अगर हम सारा अपना रिलायंस इंपोर्ट पे कर देंगे ना, जॉब्स क्रिएट होंगी आपकी यहाँ पे, और हर मरतबा हम ये बूम और बस की साइकिल से गुजरते हुए कभी भी स्टेबिलिटी नहीं आएगी। तो अगर पड़ोसी मुल्क और बाकी जो एशिया में जो मुल्क है जिन्होंने ग्रोथ की है उनका जो प्राइमरी रीज़न है वो एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ है, और हमें भी अपनी एक्सपोर्ट को फुल तवज्जो देनी होगी। आई थिंक जितने भी जो ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट्स हैं वो तो डेफिनेटली इंशाल्लाह ग्रो करेंगे और डबल डिजिट में ग्रो करेंगी। और इवन जो गवर्नमेंट का जो एस्टिमेट है वो काफ़ी कंजर्वेटिव एस्टिमेट है, और मुझे उम्मीद है कि इस साल जो ग्रोथ आएगी वो बहुत बेहतर आएगी। बट इसके अलावा मैं आज से 10 सेक्टर्स हमने EAC में आइडेंटिफाई किए कि जो हमें अगले 2 से 3 सालों में उसको $1 बिलियन पे लेके जाना है।
ताकि ये सी फूड एक्सपोर्ट है, IT में इंशाल्लाह डबल डिजिट ग्रोथ हो रही है, मोबाइल फ़ोन की एक्सपोर्ट इंशाल्लाह शुरू हो जाएगी। इसी तरीके से 6-7 और सेक्टर्स हमने आइडेंटिफाई किए कि हमें $1 बिलियन जो है वो हर एक सेक्टर से मिले, ताकि हमारा जो एक्सपोर्ट बास्केट है वो भी डाइवर्सिफाई हो जाए और जो 50 बिलियन का जो टारगेट सेट करना चाहते हैं वो इजीली जो है वो अचीव हो जाए। जो EAC ने जो काम किया है और जो रिकमेंडेशन दी है, मुझे बड़ी खुशी से आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें बहुत सारी रिकमेंडेशंस गवर्नमेंट ने इसी बजट में एक्सेप्ट कर दी हैं, और जो थोड़ी बहुत रह गई है वो शोबत साहब ने कहा कि इंशाल्लाह अगले बजट में वो उसको पूरा कर देंगे। तो ये सारी जो फीलिंग है और जो एनवायरनमेंट है वो सारा एक बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट है। बड़े टाइम बाद और बड़े सालों बाद मैंने देखा है कि एक वो गवर्नमेंट आई है जो वाकई में बिजनेस को ठीक करना चाहती है, बिजनेसमैन को हेल्प करना चाहती है, ताकि हम अपने पैरों पर खड़े हो जाए। हम हर मरतबा जो सड़क बनानी है या काम कराना वर्ल्ड बैंक के पास और एशियन डेवलपमेंट बैंक के पास जाके खड़े हो जाते, आई थिंक ये सिलसिला ख़त्म हो जाना चाहिए पाकिस्तान में। पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है और कौम है, और लोग इस चीज़ को इस तरीके से समझते हैं कि अगर हम ये पॉलिसी को कंटिन्यू करें और ये गवर्नमेंट की कंटिन्यूटी रहती है इंशाल्लाह अगले 8-10 सालों में, तो आप देखेंगे इंशाल्लाह अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे और हमें किसी के मदद के लिए जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंशाल्लाह हम खुद ही रेवेन्यू जनरेट करेंगे, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग हम जनरेट करेंगे, जिससे जितने भी जो हमारे मुल्क की अपनी रिक्वायरमेंट्स वो खुद पूरा कर सकें। थैंक यू मुस्तफा साहब। आई विल रिक्वेस्ट रज़ाक दाऊद साहब। मुझे तो सबसे बड़ी खुशी इस बात की हुई है कि अभी पाकिस्तान सही मानों में तवज्जो दे रहे हैं ऑन आवर एक्सपोर्ट्स। तो ये आपने देख लिया कि इस साल हमारा टारगेट है 38.7 बिलियन फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स was 38.7 और गुड्स का है सिर्फ गुड्स का 31.2 और सर्विसेज का 7.5। गुड्स के जुलाई के फिगर्स आ गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ऑन टारगेट। सर्विस आ जाएंगे तो वो थोड़ा सा लैग होता है। तो मुझे असल में ज़्यादा बातें एक्सपोर्ट के ऊपर नहीं करनी, मुझे बातें करनी ऑन इम्पोर्ट। बस इस वक्त जो हमारा ट्रेडिशन है कि जैसे इकोनॉमी पिकअप करते हैं, आप देख लिए कि प्रेशर आ रहा है इम्पोर्ट के ऊपर। तो हमें काफ़ी टाइम एनालाइज कर रहे हैं कि देख रहे हैं कि किस तरह से हमें इम्पोर्ट्स के ऊपर तवज्जो देकर वहाँ कंट्रोल लेके आए और ज़्यादा से ज़्यादा रैशनलाइज करें हमारे इम्पोर्ट्स इसलिए बढ़ते हैं कि ट्रेडिशनली पाकिस्तान हैज़ ऑलवेज बीन रिलाइंग ऑन ट्रेडिंग, नॉट मेक इन पाकिस्तान। अभी मेक इन पाकिस्तान हो रहा है और आपके सामने जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल, इससे कोई बेहतर एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता कि हमारी जो पॉलिसी ऑन मोबाइल फोन्स, आपने देख लिया कि मोबाइल फोन ट्रेडिशनली इंपोर्ट करो, इस वक्त नहीं, हम लोग इंपोर्ट नहीं कर रहे और ज़्यादा से ज़्यादा मेक इन पाकिस्तान लोकल प्रोडक्शन है। एक और चीज़ है जिससे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रही है, वो ये है कि हम लोगों ने टैरिफ रैशनलाइजेशन कर दिए है। इस वक्त तकरीबन 50% रॉ मटेरियल पाकिस्तान में आते हैं ड्यूटी फ्री, और इसको फाइनेंस मिनिस्टर के साथ डिस्कस हुई है कि अगले साल भी किस तरह से इसको और मज़ीद बढ़ाना है। शुक्रिया। थैंक यू रज़ा साहब। मैं मखदूम साहब से रिक्वेस्ट करूंगा एग्रीकल्चर के बारे में अगर वेरी गुड। शुक्रिया जनाब शौकत साहब। जो हमारा ज़राई शोबे से ताल्लुक़ ग्रुप बना था, इसने इज्तिमाई तौर पर मीटिंग्स करके और अपनी सिफारिशात पेश की हैं।
ज़राअत जिसको हम हमेशा रीढ़ की हड्डी कहते हैं, बदकिस्मती से मैं समझता हूँ पिछले 20 साल से इसको जो मेन स्ट्रीम लाइन थी हमारी इस मुल्क के फैसले करने की, उसमें उतनी तरजीह नहीं दी गई जितनी तरजीह देनी चाहिए थी। 1960 से लेकर 2000 तक औसतन ज़राई शोबे की तरक्की तकरीबन 4% रही। पिछले 20 साल से ये कम होकर तकरीबन 3% तक आ गई। जो हमारा पिछला साल गुजरा है, इसके बावजूद कि कोविड-19 का सारा मुल्क शिकार था, हमें कुदरत की मेहरबानी से और पॉलिसी फॉर्मुलेशन की वजह से काश्तकार जो इसकी अव्वलीन तरजीह है, हमारे देखते हैं कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब और हमारी काबीना और इसमें हमारे फाइनेंस मिनिस्टर का भी मैं समझता हूँ इस दफ़ा बहुत रोल रहा है इस बजट में, कि हमने बजट में भी इजाफा किया है और काश्तकार की मयार ज़िंदगी को बुलंद एक ही तरीके से हम कर सकते हैं अगर उसका जो जायज़ मुआवजा है वो जो भी पैदा करता है उसको मिले। और जो हमारे 5 मेजर क्रॉप्स हैं उसमें गंदम तकरीबन 38% हमारी जो काश्त होती है वो गंदम की होती है। और जैसे अभी डॉक्टर अशरफ साहब कह रहे थे कि 29-30 मान इसमें इस साल हमने 22.5 लाख टन का एक साल में इजाफा किया। 2 वजूहात, गंदम की जो मिनिमम स्पॉट प्राइस थी वो 1400 से बढ़ाकर 1800 पे कर दी गई, और दूसरा ये कि जितने भी इनपुट्स थे वो निस्बतन उस वक्त उनकी जो कीमत थी वो मैं समझता हूँ कि काफ़ी हक में थी काश्तकार की, और उसकी वजह से इस मरतबा आपने अब तक देखा है कि उस तरीके से कोई हमारा बहरान नहीं पैदा हुआ जो पिछले साल हुआ था, जो हमारी 25.25 मिलियन टन गंदम हुई। उसके साथ धान की पैदावार में 10 लाख टन इजाफा हुआ, 7.4 मिलियन टन से लेकर 8.4 मिलियन। मकई में 8.4 मिलियन, 7 लाख टन का इजाफा हुआ। और शुगर केन में सेकंड हाईएस्ट प्रोडक्शन हुई कपास, और यहाँ इस मरतबा 8 साल के बाद इंटरवेंशन प्राइस मुकर्रर की गई 5040 kg की। इस पर काफ़ी बहस हुई और मैं ये समझता हूँ कि हमने मुस्तकबिल के लिए एक पैगाम दिया है अपने काश्तकार को, क्योंकि जितना कपास से फ़ायदा होता है, तमाम तर हमारी इंडस्ट्री 40% का बुनियाद ही कपास रही है और ये पिछले कई सालों से पीछे जा रही थी। तहकीक, एक्सटेंशन, काश्तकार को सही मयारी बीज देना और उसके इनपुट्स जो हैं वो मुनासिब कीमत पे वो हम कोशिश कर रहे हैं। और इसी साल हम देख रहे हैं, अभी साउथ पंजाब के 5 अजला में मैंने खुद दौरा किया था, तो मैं ये समझता हूँ कि इस साल हमारे जो टारगेट था तकरीबन 10 मिलियन बेल का, उसके करीब इंशाल्लाह इस दफ़ा हम आ जाएंगे, क्योंकि इस दफ़ा हमारे साथ मौसम जो है क्लाइमेट चेंज का बहुत ज़बरदस्त इफेक्ट है। पिछले साल हमें इसके कुछ क्रॉप्स में हमें डैमेज हुआ था, ख़ास तौर पे सिंध की हमारी निस्फ हो गई थी पैदावार कपास की। इस साल हम समझ रहे हैं कि पिछले साल से काफ़ी ज़्यादा हमारी होगी और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा, क्योंकि 1 मिलियन बेल जो होती है अगर जब इम्पोर्ट करते हैं उसका $250 मिलियन का फ़र्क पड़ता है। अगर 3 से 4 मिलियन हमारी बढ़ गई तो मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत ही फ़र्क इंशाल्लाह पड़ जाएगा। इसके साथ तहकीक, जब तक तहकीक सही नहीं होती और हमारे जो इदारे हैं उनकी हम कोशिश ये कर रहे हैं कि अपग्रेडेशन करें, और वो एक ही तरीके हो सकती है कि हमारा साइंटिस्ट का मयार जो है वो ग्लोबल सतह का हो, और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि उनकी रिस्ट्रक्चरिंग हो, उनकी रीओरिएंटेशन हो, और उसका जो फर्क पड़ेगा हमारी एक्सटेंशन सर्विसेज और फिर काश्तकार तक उस तहकीक के जो नताइज हैं वो पहुँचाए जाएँ और उसका मयार बेहतर किया जाए। सॉइल साइंस जो हमने सॉइल मैपिंग तो काफ़ी हद तक हमारे कुछ लोगों ने किया, कुछ कर रहे हैं, सफारतों से भी हम मदद दे रहे हैं। इसके साथ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी में जो प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्राम चला था उसमें ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट का बहुत बड़ा ताल्लुक है, जिसमें हम जो हमारे वाटर चैनल्स हैं और लेजर लैंड लेवलिंग से बहुत ही फर्क पड़ रहा है। वो आहिस्ता आहिस्ता उसमें 50% वफाक दे रहा है और सूबा उसमें हिस्सा दे रहा है अपना। पर हमारी कोशिश है कि क्रेडिट हम इतना मुहैया करें, इस पर भी बात इंडस्ट्री भी कर रही थी, पर हमारा ये ख्याल है, और इसमें फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने जो कामयाब जवान प्रोग्राम में 1.5 लाख 3 लाख
इंटरेस्ट फ्री लोन्स रखे हैं, क्रेडिट जब वो काश्तकार तक पहुंचेंगे मेरे ख्याल में बहुत ही इसका फर्क नजर आएगा आपको। टेक्नोलॉजी की बात पहले की, और अब न्यू इनिशिएटिव जब हम लेना चाह रहे हैं कि यहाँ एक ये समझते हैं कि हमारे 2 रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स हुई हैं सिट्रस और मैंगो में, और उसके साथ ही सोयाबीन की कल्टीवेशन 3000 एकड़ पे पहली दफा की गई है, और फिशरीज और लाइव स्टॉक को भी हम अपग्रेड करने की बड़ी कोशिश कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इन्हीं अल्फाज से मैं आपका शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मखदूम साहब। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा आरिफ हबीब साहब जो है वो इंक्लूसिव पॉलिसी हो, आई थिंक उसको उन्होंने साबित किया। और EAC में उन्होंने न सिर्फ ये है कि सारे मिनिस्टर्स थे, प्राइवेट सेक्टर से जो है वो लोग थे, इकोनॉमिस्ट जो है उन्होंने शामिल किया, और उन्होंने बहुत ही तफसील से जो है मुख्तलिफ पॉलिसीज़ को जो है वो डिस्कस करके और फिर अपनी रिकमेंडेशंस की, और उन रिकमेंडेशन को सब्सटेंशियली जो जायज़ रिकमेंडेशंस थी उनको सब्सटेंशियली जो है वो बजट में शामिल किया। कुछ चीज़ें जो है वो बाकी हैं, आई होप कि उसको भी जो है वो उनकी कंसिडरेशन में है, वो आइंदा जो है जब भी अप्रोप्रिएट टाइम पे उसको। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बात का इंक्लूसिवनेस का ये आज प्रूफ है कि हमें बड़ा प्लेजेंट सरप्राइज हुआ कि ये आज मिनिस्टर के साथ हमको बिठा के जो है वो ये प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। तो उसमें और फिर उसके बाद उन तमाम स्टेक होल्डर्स को शामिल करना, और फिर आपके थ्रू जो है वो तमाम लोगों के साथ, आवाम के साथ जो है वो ये सारी पॉलिसीज़ को करना, आई थिंक इसके मुझे लगता है बहुत अच्छे इंशाल्लाह हम नताइज देखेंगे। इसमें डिस्कशन होगा मीडिया में, और फिर इससे और अच्छी चीज़ें जो है इमर्ज होंगी। मेरी जो जिम्मेदारी थी वो कंस्ट्रक्शन एंड हाउसिंग के सिलसिले में थी, और इसकी अहमियत जो है वो हुकूमत ने जानते हुए 1 साल से ज़्यादा से जो है वो कंस्ट्रक्शन पैकेज की सूरत में और उसकी कंटिन्यूस मॉनिटरिंग की सूरत में जो है वो चीज़ जो है वो हमने देखा कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन को भी जो है वो मॉनिटर किया जा रहा, और उसके अच्छे नताइज ये थे कि हमने देखा कंस्ट्रक्शन मटेरियल बशमूल सीमेंट, स्टील जो है उसमें हमने एक इम्प्रेसिव जो है वो ग्रोथ देखी। कंस्ट्रक्शन फाइनेंस की अवेलेबिलिटी को जो है वो बढ़ाया गया, उसमें हमने देखा कि जो है वो 150 बिलियन से ज़्यादा की जो है वो कंस्ट्रक्शन फाइनेंसिंग ऑलरेडी जो है वो डिस्पर्स की जा चुकी है। इसी तरह छोटे लोगों के लिए लो कॉस्ट हाउसिंग के लिए जो है वो मॉर्गेज फाइनेंसिंग, और आम लोगों के लिए मॉर्गेज फाइनेंसिंग पॉलिसीज़ का जो है इजरा होने के बाद कोई 150 अरब से ज़्यादा की जो है वो छोटे घरों के लिए एप्लीकेशन जो हैं वो ऑलरेडी वसूल हो चुकी हैं, जिसमें से 50 अरब से ज़्यादा जो है बैंकों ने जो है वो अप्रूव कर दी हैं, एंड उसकी डिसबर्समेंट जो है वो तेज़ी से होगी। मुझे लगता है कि इन पॉलिसीज़ के ज़रिए जो न सिर्फ ये है कि हाउसेस की अवेलेबिलिटी जो है वो को इंश्योर किया जाएगा। आप सबको पता है कि 1 करोड़ से ज़्यादा घर की जो है वो शॉर्टेज है पाकिस्तान में, हर साल 7-8 लाख घर जो है की शॉर्टेज बढ़ती है। उससे न सिर्फ ये है कि घर की शॉर्टेज को जो है वो एड्रेस करने का जो है वो इसके ज़रिए जो है ये ऑब्जेक्टिव हासिल होगा, बल्कि इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए भी और इंडस्ट्री की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए भी जो है ये मददगार साबित होगा। तो EAC ने, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ने इस बात को जो है की ख्वाहिश जाहिर की कि एक तो ये पॉलिसी के जो पॉजिटिव नताइज हैं वो सस्टेनेबल होने चाहिए, और इसके लिए जो है वो इकदाम को आप रिकमेंड करें। दूसरी ये है कि कंस्ट्रक्शन जो है हमारे मुल्क के अंदर जो है वो ऑफ द बुक जो है वो ज़्यादा जो है एक्टिविटी रहती है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन को जो है वो इंश्योर किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैसिलिटेट किया जाए, ताकि इसकी जो रिसोर्सेज पर और ख़ास तौर पे इसकी जो घरों की परचेज के लिए, घरों की, ऑफिसेस की, दुकान की परचेजेस के लिए जो है वो लोगों को वसाइल हासिल हो सके। और आपको ये पता है कि पाकिस्तान में जो है इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा जो है एप्रिसिएशन जो है वो रियल एस्टेट में रहती है। तो अगर आप बोरो करके, खासकर छोटे लोग जो हैं उनको जो है कंसेशनल रेट पर जो है वो ये फाइनेंस अवेलेबल करना 3%, 5% और 7%, और अपफ्रंट सब्सिडी जो है वो 3 लाख रुपए की अवेलेबल करना, मुझे लगता है कि जो ये अच्छे नताइज हमने देखे हैं
आइंदा दिनों में मज़ीद जो है वो अच्छे रिजल्ट्स इसके मुझे पाइपलाइन में नज़र आते हैं और इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि इसी तरह हम ये जो ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का जो है वो हासिल कर सकें। थैंक यू आरिफ भाई। सलीम भाई, अगर आप फाइनेंशियल सेक्टर पे कुछ कह सकें। शुक्रिया जी। हमारा ग्रुप was looking after ways of increasing our financial sector's capacity to support higher growth और तरीके जिसके जरिए से गवर्नमेंट की डेट हम बेहतर डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। इस वक्त कॉन्सेंट्रेटेड है बैंक्स पर और उसको एक एफिशिएंट तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकें ताकि ये बैंक मार्केट की जरूरियात के लिए कॉम्प्लीमेंट्री बन जाए, डिसरप्टिव और कॉन्फ्लिक्टिव ना हो जो कि अब कभी कभार हो जाती है। अच्छा, तो अगर हमारी सस्टेनेबल ग्रोथ 6% होने वाली है तो बिल्कुल जाहिर है कि हमें कोई 24% ऑफ GDP इन्वेस्ट करना पड़ेगा, निस्बतन 14-15 जो कि आज है। अच्छा, इस चैलेंज के लिए हमारे फाइनेंशियल सेक्टर को काफी कंसिडरेबल रीइंफोर्समेंट चाहिए हो। एक तो बहुत छोटा है हमारा फाइनेंशियल सेक्टर, डिपॉजिट्स हमारे हैं 33% ऑफ GDP, ये दुनिया के स्टैंडर्ड से बहुत कम है और इवन बाय रीजनल स्टैंडर्ड्स ये बहुत कम है। गवर्नमेंट टेक्स अप द मेजॉरिटी ऑफ बैंक्स लोनेबल एसेट्स, 55% बैंक्स के पास चले जाते हैं, 45 रहते हैं पूरी मार्केट क्रेडिट के लिए, उसमें से 1/2 सिर्फ जाता है SMEs और एग्रीकल्चर को, तो 45 में से 90% बड़ी कंपनीज ले जाती हैं। तीसरा कोई 42% हमारा कैश टू डिपॉजिट्स रेशियो है। ये दुनिया में कोई मुल्क आप तलाश कर लीजिए, अगर 20% से ज्यादा कहीं मिल जाए इट विल बी वेरी अनयूजुअल, तो बहुत ज्यादा ही। तो इन तीनों चीजों को हमको टैकल करना है। अगर हम कर लें तो एक चीज बिल्कुल एश्योरेंस देना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पैसा है, मोबिलाइज नहीं है ठीक से, हमारे यहाँ बहुत सारी काबिलियतें हैं जो कि हमने खुद अनलीश नहीं की हैं मार्केट फोर्सेस के जरिए से, और अगर जो इक़दाम हम लोग ले रहे हैं और अभी इम्प्लीमेंट होना शुरू है, अगर वो हो जाए, मोमेंटम पा जाएं अगले 2-2.5 साल में जो जिसकी उम्मीद है, तो हमारा जो इस वक्त 9 ट्रिलियन का पूरा प्राइवेट पूरा मार्केट क्रेडिट है ये डबल हो सकता है। बहरहाल अब इन चीजों को मैं सरसरी तौर पे हेडलाइंस तौर पे इनका जिक्र कर दूंगा, आप चाहें तो किसी और वक्त इनका फिर डिटेल में मुझसे बात कर लें। ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की डिस्ट्रीब्यूशन को ब्रॉडन करना, सबसे पहले प्राइमरी डीलर्स का नंबर्स बढ़ाना वो कि हो गया है, प्राइमरी डीलर्स को बिड करवाना ना सिर्फ वॉल्यूम के लिए मगर मेजॉरिटीज के लिए कि वो कंसिस्टेंटली कि उनकी बिड ट्रेजरी बिल्स की भी हो और PIBs की भी हो और PIBs मेजॉरिटी वाइज एक ऐप बनाना फॉर प्राइवेट इन्वेस्टर्स सो दैट दे कैन बाय सेल एंड ट्रेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जिस पर स्टेट बैंक काम कर रही है, इंशाल्लाह जल्दी बन जाएगा। इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाना हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का, ना सिर्फ NRPs, ना सिर्फ नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी। आप देख रहे हैं कि रोशन के जरिए से काफी इन्वेस्टमेंट आ गया पाकिस्तान के सर्टिफिकेट्स में NRPs में, मगर हम बात कर रहे हैं इस वक्त इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। अगर उसको हम लाने वाले हैं हमारी अपनी सिक्योरिटीज में, तो हमको इंटरनेशनल क्लियरिंग सिस्टम ज्वाइन करना होगा। यूरोक्लियर एक है और जो सबसे पॉपुलर है, और फिर हमें किसी बड़े इमर्जिंग मार्केट फंड का हिस्सा बनना पड़ेगा और उसमें JP Morgan सबसे मुनासिब होगा। और ये दोनों चीजें इनिशिएट हो गई हैं और हमें उम्मीद है अगले 5-6 महीने में काम कंप्लीट हो जाएगा। सकूक मार्केट को डेवलप करना, गवर्नमेंट को एक प्रॉपर्टी रजिस्टर बनाना है तैयारी के लिहाज से कि ये हम इस वक्त कर सकते हैं, ये 2 महीने के बाद प्रॉपर्टी या कोई एसेट जो कि कैश जनरेटिंग हो, क्योंकि इस वक्त सकूक का स्लो डाउन, सकूक डोमेस्टिक और बाहर गल्फ मार्केट में सकूक का स्लो डाउन हो जाता है क्योंकि गवर्नमेंट के एसेट तैयारी की शक्ल में यानी प्रिपेयर्ड टू पुट टू द मार्केट उस शेप में नहीं होते हैं, उसमें वक्त लग जाता है। भारत तो अगर रजिस्टर बन जाए उससे बहुत फायदा होगा। अच्छा, रिड्यूसिंग कैश होल्डिंग, जैसे मैं कहा था 42 से अगर उसको 20 पे ले आए तो 3 रास्ते हैं। एक, मर्चेंट और रिटेलर को कनेक्ट करना, इसमें रास्त इंटरऑपरेबिलिटी पैदा कर देगा बैंक्स, टेलकोज और फिनटेक्स में, जो कि बहुत मुनासिब होगा फिर स्मॉल पेमेंट्स के लिए खास तौर पे। अब मर्चेंट्स को इसमें इंटीग्रेट करना सबसे तेज तरीका और सबसे सस्ता तरीका है QR कोड्स, और स्टेट बैंक काम कर रहा है बैंक्स के साथ मिलकर इस वक्त
एक यूनिवर्सल QR कोड बनाने का, जैसे वीजा है कि आप कोई सा भी कार्ड इस्तेमाल कर लें किसी बैंक का भी, मगर वीजा की एक कॉमन सिस्टम है, तो वो सोच रहे हैं एक कॉमन QR कोड हो जो सब बैंक जिसके साथ लिंक हो सके। बैंक्स पूरी तरह से कन्विंस नहीं, ये बातें हो रही हैं, मगर उम्मीद है ये जल्द हो जाएगा। ये QR कोड अगर हो गया तो यू कैन बाय बार ऑफ सोप, अ पैकेट ऑफ सिगरेट्स, यू नो व्हाट एवर यू वांट। स्मॉल पेमेंट्स बहुत कन्वीनियंट है और हमें उम्मीद है इसकी वजह से लोग कैश की जगह प्रेफर करेंगे वॉलेट पे, इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट पे पैसा होल्ड करना, क्योंकि खर्चे के लिहाज से इट विल बी एज कन्वीनियंट। मर्चेंट्स की नंबर से बढ़ना इस वक्त 60-62 है, हमको चाहिए होंगे 3 लाख 4 लाख, मगर ये चीजें, ये रास की जो इंटरऑपरेबिलिटी और ये QR कोड के साथ मेरा ख्याल है बहुत इंप्रूवमेंट पैदा होगा। आखिर में हमको ये जो ड्यूटीज, टैक्सेस और फीस और लेवीज हैं, ये पूरी इसकी चेन में, ये डिजिटाइजेशन की चेन में, वी हैव टू रिकंसिडर देम एंड कंसिडर मेकिंग देम लाइटर, क्योंकि बोथ ऑन द इक्विपमेंट्स एंड ऑन द ट्रांजैक्शंस जो लेवी होती हैं। और उसकी वजह ये है कि अगर आपकी डिजिटल खर्चा, डिजिटल यूज कैश से बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो गया तो काउंटर प्रोडक्टिव होगा, इस्तेमाल ही नहीं होगा। अच्छा, दूसरा एक बहुत अहम इनिशिएटिव है गवर्नमेंट को कि पेमेंट्स और रिसीट्स को डिजिटाइज करना। यहाँ रास्ता तो तैयार है, मगर गवर्नमेंट इस वक्त कंट्रोलर जनरल अकाउंट्स और AGPR तैयार कर रहे हैं एक इंटरफेस API जो कि रास्ते से कनेक्ट होगा, और जैसे ही वो हो गया तो ये मुमकिन हो जाएगा। अच्छा, आखिर में मैं छोड़ देता हूँ, 3-4 चीजें हैं, मगर ये सप्लाई चेन्स की जो डिजिटाइजेशन की बात हुई है, ये 3-4 तरीके से हो सकता है। एक तो स्टेट बैंक लाइसेंस दे रहा है प्योर डिजिटल बैंक्स को, ये लाइसेंस ऑफर हुआ है और काफी इंटरेस्ट शो हुआ है। अभी तक आई एम नॉट श्योर लाइसेंस हैज बीन इशूड, मगर एप्लीकेशंस आए हैं, और ये होगा प्योरली डिजिटल। इसमें आपको ब्रांचेस नहीं होगी, सब कुछ आपके कंप्यूटर पे, आपके फोन पे बैंक काम करेगा। फिर ये जो पूरी मार्केट रिसीवेबल्स जो हैं, जो कि बैंकिंग सेक्टर के जरिए से नहीं फाइनेंस होती है, इनफॉर्मल मार्केट से फाइनेंस होती है, और मैं बात कर रहा हूँ मैन्युफैक्चर, ये FMCG जो मैन्युफैक्चर करते हैं गुड्स, उनके डिस्ट्रीब्यूटर, सब डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर और बायर, इस चेन में जो क्रेडिट पड़ा हुआ है वो एक अंदाजे के मुताबिक हमारे फॉर्मल क्रेडिट का 1/3 हिस्सा है, 1/3। तो इस पूरी चेन की डॉक्यूमेंटेशन बड़ी तेजी से बढ़ रही है, और ये फिनटेक्स कर रहे हैं, क्योंकि जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको अपने रिकॉर्ड्स के लिए चाहिए। जब ये एक दफा इंफॉर्मेशन आ जाए तो हम फिर लोगों का क्रेडिट हिस्ट्री निकाल सकते हैं, और वो फिर लोग क्रेडिट हिस्ट्री निकल आए तो यू कैन रेट दीज बोरोअर्स एंड यू कैन ऑफर देम फाइनेंस फ्रॉम द मार्केट। इंडिया में ऐसे 30-35 कंपनीज बन गई जो ये सप्लाई चेन इस तरह की रिसीवेबल डिस्काउंटिंग कर रही है, और इस पर भी हमारा काम हो रहा है। एक दो चीजें रह जाती हैं, मगर जैसे मैंने कहा इंशाल्लाह किसी और वक्त बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच सलीम। अच्छा जी, अब क्योंकि एक और भी मेरे ख्याल में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो इसलिए मैं चाहूँगा कि हम चंद सवालात लेंगे, और आप प्लीज़ डायरेक्ट करें जो भी जहाँ से आप लें। जी देखें, आप देखें सर, आराम से जी सर। मेरा नाम तनवीर हाशमी है और मैं जंग अखबार को रिप्रेजेंट करता हूँ। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि आमतौर पर यह देखा गया कि हमारे मुल्क में पॉलिसीज तो बनती हैं, लेकिन उन पॉलिसीज पर उस तरह से इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। अब जिस तरह से आपने 12-13 ग्रुप्स बनाए हैं और उनके ऊपर स्ट्रेटजी डेवलप की है मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के साथ कंसल्टेशन के साथ, तो क्या इसमें एक ये इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से क्या श्योरिटी है कि जो हमारी ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स आती हैं वो उन पर इम्प्लीमेंटेशन उस तरह से करेंगी? क्योंकि पिछले 3-4 सालों में हमने देखा है कि हमारे यहाँ जितनी भी पॉलिसीज बनी हैं उनमें आबादी के लिहाज से उनको नहीं बनाया गया कि आबादी हमारी किस तरह से बढ़ रही है और हमारी डायरेक्शंस किस तरफ जा रही हैं, और उसी वजह से हमारा पर कैपिटा इनकम पिछले 3 सालों में कम हुआ है। रोज करें आप, क्योंकि देखें और लोगों ने भी सवाल करने हैं, तो मेहरबानी हो, क्योंकि मैं जवाब भी दूंगा ना आपका। जी सर यही मेरा क्वेश्चन है कि जो रिलाई हमारे इम्पोर्ट के ऊपर, अब फूड आइटम के इम्पोर्ट के ऊपर हमारा रिलाई बढ़ गया है, और ये कैसे, यानी कि जो आपके स्ट्रेटेजीज हैं किस तरह से उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो? ओके, बड़ी मेहरबानी सर। आपका जो सवाल ओरिजिनल था वो ये था कि हम पॉलिसीज बनाते रहते हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो होती है नहीं होती,
और फिर उसके असरात जो इकॉनमी पे होते हैं वो बड़े पैची होते हैं। तो ये बेसिकली मैंने मुख्तसर आपका सवाल को भी रिवर्ट करते। देखिए जी, पहली बात तो ये है कि हम ये पहली दफ़ा प्लान बना रहे हैं जो इंक्लूसिव है। इसका मतलब सारे स्टेक होल्डर्स जो हैं वो मिल के उन्होंने प्लान बनाया। जो अगर एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर में फार्मर्स भी उसमें थे, उसके बीच में जो फर्टिलाइजर कंपनियां भी थी वगैरह वगैरह, तो बड़ा लार्ज ग्रुप बन के उन्होंने स्टेक होल्डर्स ने बनाया। जो स्टेक होल्डर्स बनाते हैं इसका मतलब वो प्लान रेलिवेंट होता है। तो वो रेलिवेंट जब प्लान होता है तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन ज्यादा बेहतर होती है। दूसरी चीज ये हर महीने इन लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। अभी मखदूम साहब जो हैं इनको हर महीने खड़े अपनी टीम के साथ खड़ा होना पड़ेगा। किसके सामने? प्राइम मिनिस्टर के सामने, कि ये जनाब हमने प्लान में कहा था और ये हमने किया और ये नहीं किया। ये हर महीने अच्छा, ये नहीं है कि ये मतलब रैंडम पे जाके प्रेजेंट कर दिया, नहीं, ये एक ऑर्गेनाइज तरीका है जिसको हम लोग ये जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में इकोनॉमिक रिफॉर्म यूनिट जो है इसको कोऑर्डिनेट करेगा, और पाइट जो है उनके जो है इकोनॉमिस्ट हैं ये इनको हेल्प करेंगे, उनको वो बेसिकली प्रेजेंटेशन बनाने के। सो ये एक ऑर्गेनाइज तरीके से हम आगे चलना शुरू होंगे। अब कितना सक्सेसफुल होता है सर वो तो टाइम बताएगा, लेकिन हमारी इंटेंट जो है वो नोबल है और हमने एक्चुअली कम से कम हरकत तो की है ना, और हरकत में बरकत है। जी शहबाज साहब। जी थैंक यू मिनिस्टर साहब। सर, किसी भी प्लान की इम्प्लीमेंटेशन में उसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। हम अनफॉर्चुनेटली अगस्त 2021 में बैठे हैं और आपके जो पॉलिटिकल जो है वो एक एजेंडा लग रहा है गवर्नमेंट का, फिस्कल एक्सपेंशन की तरफ आप जा रहे हैं। तो क्या वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब और आप बीइंग द फाइनेंस मिनिस्टर तैयार हैं मुश्किल फैसले करने के लिए? और ये जो प्लान सर आपने दिया है इसकी इम्प्लीमेंटेशन की कॉस्ट और टाइमिंग कितनी है? विदाउट कॉस्ट, खासतौर पर जब आप IMF के प्रोग्राम के अंदर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अभी भी हैं, तो आप कैसे ये इम्प्लीमेंट करेंगे? थैंक यू। देखिए जी, इसकी कॉस्ट बड़ी मिनिमल है। वो इसलिए कि हम लोग ERU जो हमारा जो फाइनेंस के बीच में है वो एक आदमी उधर होगा और हम जो उसकी हाँ जी मेरी बात है, जो मैं सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट की बात कर रहा हूँ। और दूसरा ये पाइड है, और पाइड ने कहा है जो भी हम स्पेशलिस्ट लगाएंगे उसकी हम एक आपसे कॉस्ट ले लेंगे, वो 50,000 या लाख रुपया ले लिया करेंगे। तो अगर 14 हैं तो आप समझे 14 लाख की बात उधर की उसकी कॉस्ट है। जो इसकी कॉस्ट है कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन की कॉस्ट है, वो तो यार कोई भी मिनिस्ट्री जो कोई भी प्लान करेगी तो वो उसकी जो वो कॉस्ट आएगा वो तो बीच में होगी। जो आप ये कह रहे हैं कि इसमें कई ऐसी सजेशंस हैं जो हमें कॉस्ट कर सकती हैं, वो तो हमने ऑलरेडी मैं कहता हूँ 70%, 60-70% इनकॉर्पोरेट कर ली हैं पिछले बजट में। अगर कॉमर्स ने हमें कहा है कि यार ये चीजों को आप निकालें, हमने निकाल दी हैं। अगर एग्रीकल्चर ने कहा है कि जी हमें ये पैसे चाहिए, हमने वो एग्री मॉल्स बनाने हैं, हमने सीड की डेवलपमेंट करनी है, ये करनी है, वो हमने डाल दी है। तो ये कॉस्ट जो होगी वो इस वक्त कैप्चर्ड है, 60% तो कम से कम है, और अगले साल में बाकी भी कर देंगे। फिर आपका इसी से मैं आगे लेके चलता हूँ ताकि कोई और सवाल पूछे तो मैं उसका भी जवाब। हमारे पास तो सिर्फ 2 साल है, ये 2 साल में तो यार शॉर्ट टर्म ही कुछ कर सकते हैं ना, मीडियम और लॉन्ग टर्म क्या करेंगे? ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है, ये 10 डैम बना रहा है, और 10 डैम तो इसकी हुकूमत में टेनर में नहीं बनेंगे। तो हमारा विजन है कि ये प्लानिंग जरूरी है हमारे लिए, हम हो या ना हो, एंड दिस मस्ट बी अ ऑनगोइंग प्रोसेस, इट शुड बी अ लाइव प्रोसेस। तो हम इस चीज में हमें फिक्र नहीं है कि हमारे वक्त में ये प्लान इंप्लीमेंट होगा या नहीं होगा। हमने एक तरीका कार जो बड़ी जो प्रोग्रेसिव नेशंस, प्रोग्रेसिव कंपनियां करती हैं वो हमने शुरू कर दिया है, और इसमें वट एवर इट टेक्स। जी जी जनाब जानी साहब। सर, आज से कुछ 3 साल पहले जब गवर्नमेंट आई थी तो उस वक्त भी एक किसी किस्म का बड़े कम्प्रिहेंसिव प्लान दिए गए थे, और उसमें भी कहा था कि जी ये वजीर सारे खड़े हुआ करेंगे, और मेरा ख्याल इनिशियली को एक आध दफ़ा उनका परफॉर्मेंस रिव्यू हुआ भी। आज तक ये पता नहीं चला कि वो जो परफॉर्मेंस रिव्यू हुए थे फिर उनके बाद उनका आउटकम क्या हुआ। एक तो ये है सर एक ही सवाल पूछ रहे हैं और लोग सर एक ही है जी। आपके दौर में आप इंडस्ट्रियलाइजेशन और इंजीनियरिंग के ऊपर बड़ा फोकस कर रहे हैं, और पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल यूनिट जो था आपके 3 साल में सर, वो न सिर्फ रिवाइव नहीं हुआ
बल्कि उसकी वजह से जो आपका पूरा कंस्ट्रक्शन और इंडस्ट्रियल अपना हाउसिंग सेक्टर को जो सपोर्ट मिलनी थी वो सारी इंपोर्ट्स हो रही है। पाकिस्तान स्टील मिल की बात कर रहे हैं? जी, पाकिस्तान स्टील मिल। चलिए, आपका सवाल हो गया, फिर बड़ी मेहरबानी। देखें, पहली बात जो है कि मेरे से ना पूछें कि पीछे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि देखें मैं तो अपने अमाल का जो आपको मैं आपको दे सकता हूँ। देखें, जो बात सुन लें, अभी से आप ये इस तरह का जो प्रोसेस, इतने वर्टिकल्स वगैरह, मुझे मालूम है 4 ग्रुप्स बने थे उस वक्त, असद साहब आए थे, उन्होंने कोशिश की थी, और उसके बाद ज़ाहिर हमें प्रोग्राम आ गया जो भी आ गया। आज की डेट में हमने आपके सामने लोगों को बिठाया है, प्लान बने हुए हैं, ये आप देख लेंगे, और हमने इसके ऊपर अमल करना शुरू कर देना हर महीने, और आपको फीडबैक भी हम देते रहेंगे। हमारा ERU है, ये आपके साथ फीडबैक देगा इंशाल्लाह। क्वार्टरली बेसिस पे इसी किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या करेंगे, आपको बताएंगे कि हमने इसमें क्या अचीव किया। जिस तरीके से आज हुई है, हो सकता है अगली दफा ज्यादा बड़ी हो जाए। बाकी जो है, आपने कहा कि वो जो 2.5 साल हो गए हैं, 3 साल हो गए हैं, तो स्टील मिल का कुछ नहीं है, तो आप मैं ये सिर्फ आपके इतला के लिए, अगले 2-4 दिन में एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इशू हो रहा है। तो वी आर बेसिकली, वो जो था एक लॉक जैम था, वो हमने रिमूव किया है। आखिरी जो इशू था वो 2-3 दिन पहले वो किया गया है। तो पाकिस्तान स्टील मिल का SOA और उसके बाद EOI जो है, तो वो पहले SOA होगा और EOI 2-3 दिन में हो जाएगा इंशाल्लाह। हमने बहुत शॉर्ट टाइम फ्रेम दिया है कि इसके बीच में होके इसकी बिडिंग होके ये चली जानी चाहिए। हाँ जी, नेक्स्ट जी, शौकत साहब इधर, शौकत साहब इधर, शौकत साहब इधर कहाँ? ये सामने इधर देखें। आप आवाज देने शौकत जी, सैयद मुश्तबा रिजवान। शौकत साहब, आपने बहुत अच्छी नवीद सुनाई कौम को, ये मतलब आपकी टीम सारी मुबारकबाद में मुस्तैक है। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल आपसे मैंने बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था, नेशनल बैंक के पेंशनर के हवाले से। आपने नेशनल बैंक के पेंशनर जो पिछले 15 साल से और 12,000 पेंशनर जो है आपकी तरफ देख रहे हैं और 3,000 बेवाएं हैं, आपने कहा था कि मैं इसका इंशाल्लाह बहुत जल्द इसका आपको बताऊंगा। अभी तक वो आपकी तरफ देख रहे हैं, वो गुर्बत की। मैं आपको उसका जवाब दे देता हूँ। देखिए, मैं तो उसी दिन जिस दिन मैंने कहा था उसके दूसरे दिन मैंने कहा इसका क्या प्रॉब्लम है। इसका प्रॉब्लम ये है कि ये कोर्ट केस है। इस वक्त कोर्ट में, सुनते जाए ना, कोर्ट केस है। इनकी बोर्ड ने ये कहा हुआ है कि ये और उनको ये एडवाइस दी गई है कि कोर्ट डिसाइड करेगी। तो मैंने कहा यार, कोर्ट क्यों डिसाइड करेगी यार, मतलब कोई जरूरी तो नहीं है कि सिर्फ कोर्ट डिसाइड करे। वो पेंशनर्स भी चाह रहे हैं कि कोई हमारा आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो सकता है तो करें। तो मैंने उनको कहा है कि आप अपने बोर्ड को मेरे पास लेके आए, मैं उनको कन्विंस करूंगा कि अगर जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, आप बेसिकली आपस में कोई समझौता करें, फिर कंसेंट डिग्री ले लेंगे जाके कोर्ट से। तो इसके ऊपर काम हो रहा है और इंशाल्लाह आप देखेंगे इस पे एक मुस्बत किस्म का कदम होगा। अदरवाइज उन्होंने अपनी तरफ से लिख के कह दिया था कि जी जब कोर्ट डिसाइड करेगी तो हम डिसाइड करेंगे, और बेचारे पेंशनर इसमें फंसे हुए। जी सर, जी मैं तो आप सही सर एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप ब्लंट सवाल माइंड नहीं करेंगे। सर, पहली बात ये है कि आप IMF के मैंने कभी ब्लंट सवाल पहले माइंड किया नहीं, आप ना कीजिए, चले आपने कभी भी नहीं किया। सर, मेरा सवाल ये है कि आप IMF के प्रोग्राम के अंदर हैं, क्या हुकूमत तय कर चुकी है कि हमने IMF प्रोग्राम से क्विट करना है? और दूसरा, ये जो आप इतनी एम्बिशियस बातें कर रहे हैं और प्राइवेट सेक्टर के लोग भी बैठे हुए हैं और उनकी क्रेडिबिलिटी भी एट स्टेक होगी अगर आप इसमें इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, आप चार्टर ऑफ इकोनॉमी क्यों नहीं करते ताकि आइंदा आने वाली जितनी भी हुकूमतें हैं वो सारी की सारी इस बात पे हो कि हम इसको इम्प्लीमेंट करें? 3 सवाल आपने पूछ लिए, मैं आपको पहले सवाल और दूसरे का जवाब देता हूँ। चार्टर्ड इकोनॉमी के बारे में मेरी तो राय ये है कि जी बिल्कुल होना चाहिए, और अगर ये अपोजिशन जमातें आगे बढ़ती हैं तो खान साहब ने कहा हुआ है कि आप भी बढ़ के उनसे बात करें, पहली बात। लेकिन जो आपने पहला कहा कि आपने IMF प्रोग्राम में और इतनी एम्बिशियस बातें कर रहे हैं, मैंने कल भी आपको बताया कि आप उससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपने सवाल किया। कल मेरी रात को उनसे बात हुई है, हमारी गुफ्तगू जारी है। हमारा अगला राउंड जो है डिस्कशन का वो एंड ऑफ सितंबर से कहीं शुरू होगा और इंशाल्लाह वो हम आगे लेके चलेंगे। वेरी पॉजिटिव डिस्कशन यस्टरडे। सो हमारा कोई इरादा नहीं है IMF प्रोग्राम से निकलने का। उन्होंने हमें यही कहा है कि आप कह रहे थे कि हमारा एक और रास्ता है और वो आप हमें बताएंगे कि वो रास्ते पे आप कहाँ पहुंचे हैं, और इंशाल्लाह उस पर डिस्कशन करेंगे। और फिर फेस टू फेस अक्टूबर के बीच में मैं वाशिंगटन जाऊंगा, फेस टू फेस बैठ के उस पर हम वो मसले का हल कर देंगे। हाँ जी, आपसे एक सवाल। शकील
डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि आप आंसर दे दें या खुसरो बख्तियार साहब कि आप मुल्क में इंडस्ट्रियलाइजेशन करना चाहते हैं, लेकिन कराची के अंदर घरों के अंदर फैक्ट्रीज बनी हैं रिहायशी इलाकों में, आज 15 लोग जिंदा जलकर वहां पे मर गए हैं, कोई सिक्योरिटी का इंतजाम नहीं था, कोई मेजर नहीं लिए गए थे, तो आप इसको कैसे इंश्योर करेंगे? जिम्मेदार इसका कौन है? और मुस्तकबिल में ये ऐसे वाकयात रोकने के लिए गवर्नमेंट क्या इकदाम करना चाहती है? इन टर्म्स ऑफ फैक्ट्री कंट्रोल एक्ट के तहत उनकी सेफ्टी मेजर्स को प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लॉज के तहत देखना होता है, उनकी जिम्मेवारी है। मगर बदकिस्मती से ओवर द ईयर्स इतने ज्यादा रेगुलेशन हो गई हैं, बॉयलर लाइसेंस, फैक्ट्री लाइसेंस, कि ये बहुत बड़ी दुश्वारियां पैदा हो गई हैं एक ऑनेस्ट बिजनेसमैन को करने के लिए। तो यही हम काम कर रहे हैं, इसको स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं कि जो गैर जरूरी कानून है उनको भी खत्म किया जाए और जो कानून है उनको, बाकी जो जरूरी कानून है उनको इफेक्टिव बनाया जाए। मैंने भी यही आपको अर्ज की कि कराची के अंदर जगह नहीं है, और कराची जो भी इंडस्ट्रियल जोन या एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन्स या स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स चले हैं दुनिया के अंदर, वो लोकेशन स्पेसिफिक होते हैं काफी ज्यादा। चाहे आप चाइना की एग्जांपल लें और जगहों की, तो कराची के अंदर सबसे बड़ी ट्रैक ऑफ लैंड जो इस वक्त अवेलेबल है हुकूमत के पास, वो स्टील मिल का था, जो बकाया एक्स्ट्रा जमीन है, उसी में से 1500 एकड़ दिए हैं एक इंडस्ट्रियल पार्क बनाने के लिए, जो इस बजट के अंदर आ गया है। अब हम उसकी आगे की चीजों को तरतीब दे रहे हैं कि कौन सी इंडस्ट्री को और जमीन को किस किस्म की अक़सात या शराइत के साथ हम उस पोटेंशियल इन्वेस्टर को दें। थैंक यू। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया आपका। आज थोड़ा टाइम कम था, अगली दफा सिटिंग होगी, इंशाल्लाह ज्यादा टाइम लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच।